اس کی صبح سے طبیعت خراب تھی۔ ارمان نے اسے میڈیسن دی تھی، اس نے وہ بھی نہیں کھائی۔ جب سے ارمان نے عورت شیر سے نکاح والی بات کی تھی اس دن سے وہ ارمان اور فروا سے بالکل ہی لا تعلق ہی جب سے ارمان نے عورت شیر کے ساتھ نکاح والی بات کی تھی اس دن سے وہ ارمان اور فروا سے بالکل ہی لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھی۔ ارمان کی وہ بہت لاڈلی تھی، وہ جب بھی اس سے بات کرتا وہ رسپانس ہی نہیں کرتی تھی، یا اگر جواب دیتی بھی تو لہجہ روکھا پھیکا سا اور کھنچا کھنچا سا ہوتا۔ اسی لیے عورت شیر نے سب کو منع کر دیا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمیں خود دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی اسے خود اپنی عقل کو استعمال کرنے دیں۔ اب تک آپ نے اسے بچی بنائے رکھا، اس کو زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں۔ اب وہ بچی نہیں رہی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، خاموش رہ کر دیکھیں، بس روکے مت، کسی بات سے اس کو ٹوکنا نہیں۔ وہ میرے ساتھ جو بھی کرے کرنے دیں، مگر اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں۔ کم از کم مجھے ایک بچی اپنی بیوی کے طور پر ہرگز قبول نہیں، اس لیے اب اس کو گرو کرنے دیں۔ جو بھی پاگل پن کرتی ہے کرنے دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو دماغ سے سوچے گی، اور جب سوچے گی تو یقیناً کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آئے گا، مگر اس کو پریشرائز مت کریں، اس کو خود سے حالات کا جائزہ لینے دیں۔ سارا دن گزر گیا تھا، اس نے نہ کچھ کھایا نہ میڈیسن لی۔ دن بدن وہ مزید چڑچڑی ہو رہی تھی، چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک عورت شیری تھا جس سے کچھ کہہ دیتی، وہ بھی جب وہ آنکھیں دکھاتا، ورنہ وہ بھی خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے گھر واپس آیا تو وہ ویسے ہی تھی جیسے بستر پر چھوڑ کر گیا تھا۔ ایشل، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اٹھو اور فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پھر اس کے بعد میڈیسن لینی ہے۔ وہ یونیفارم چینج کر کے باہر نکلا تو اسے مخاطب کیا جو آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھ رہا تھا جو اس کو یکسر نظر انداز کرتے اسی طرح لیٹی تھی۔ ایشل، اٹھ جاؤ اب، مگر جواب ندار۔ اس نے ہیئر برش واپس رکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے دائیں بائیں بازو جما کر تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا۔ ایشل، اب اٹھ جاؤ ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا۔ اس نے وارننگ دی جس کا خاطر خواہ رسپانس بھی ملا۔ پلیز چلے جائیں، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اسے ایک نظر دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں مجھے یہاں برداشت کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ وہ اس پر جھکا، مکمل اس کے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ اس دنیا میں آخری انسان ہوں گے، تب بھی میں آپ کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گی، پیچھے ہٹیں۔ اس نے پورا زور لگا کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک انچ بھی نہیں ہلا سکی اسے اپنی جگہ سے۔ مت کرو وہ کام جو تم سے نہیں ہو سکتے۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا۔ میں جان لے لوں گی آپ کی اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو۔ وہ یکدم جنونی ہوتی چیخی اور نتیجے میں پھر سے کھانسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اس کا سانس رک رہا تھا مگر وہ اپنی ضد پر اڑی تھی۔ اوکے، اس کے بعد جو کہو گی کروں گا، پلیز ریلیکس ہو جا۔ مگر تب تک وہ مسلسل کھانسی کے نتیجے میں حواس کھو چکی تھی۔ بخار سے تپتا سرخ چہرہ تکیے پر ایک طرف لڑک چکا تھا۔ ہے سویٹ ہارٹ، اس نے بے تابی سے اسے پکارا مگر جواب ندار۔ چہرہ تھپ تھپایا مگر کوئی رسپانس نہ ہوا۔ لمحوں میں اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ ایشل، آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کے کوئی رسپانس نہ دینے پر وہ جلدی سے اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ نبض انتہائی سلو تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی طبیعت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ اگر فوراً اسے مصنوعی سانس نہ دیا گیا تو پھر شاید وہ کبھی سانس نہ لے پاتی۔ یہ لمحے انتہائی ناگزیر تھے، مگر وہ ایشل کو بھی جانتا تھا اور اس کی ناپسندیدگی بھی روز روشن کی طرح عیاں تھی اس پر۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس کی جان بچانے کے لیے اسے یہ کرنا تھا۔ اس میں خواہش کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ وہ جذبوں سے مغلوب ہو کر یہ سب کرنے پر آمادہ ہوا، اور نہ وہ اس کی خواہش اس کی اجازت کے بغیر اس کے اس قدر قریب ہونا چاہتا تھا، مگر یہ لمحے اس کی ضرورت تھے۔ بعد میں جو بھی الزام لگاتی، جس بھی خطاب سے نوازتی، اسے منظور تھا۔ اس وقت اس کی جان بچانا اہم تھا۔ نبض ڈوب رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنے لب اس کے منہ پر رکھے اور مصنوعی سانس دینے لگا۔ اس کا نسخہ کارگر رہا۔ ایشل نے لمبی سانس لی اور پھر سے کھانسنے لگی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اپنے ساتھ لگائے اسے آہستہ سے اس کی پشت کو سہلانے لگا تاکہ اس کا سانس بحال ہو۔ کچھ دیر بعد اس کا تنفس اعتدال پر آیا اور حواس بھی بحال ہوتے وہ اس سے یوں دور ہوئی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ دوبارہ تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کچھ لمحوں پہلے وہ کس قدر قریب تھا اس کے، ورنہ اس کا حشر بگاڑ دیتی۔ ان کے درمیان ایک جائز رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ کیسی کڑی شرائط تھی اس لڑکی کی، یا شاید نفرت کا اظہار تھا، مگر وہ اس سب کے باوجود بھی اس سے لاپرواہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کیسا رشتہ بن گیا تھا ان کے درمیان،
वो दूर जाने की कोशिशों के बावजूद उसके करीब आ जाती और वो उसकी नफ़रत के बावजूद उससे कन्नी कतरा कर गुजरने से कासिर था। वो अब करवट बदल कर लेट चुकी थी, जिसका मतलब साफ था कि वो जा सकता है, मगर वो उसकी पुश्त को घूरता सोचों में उलझ चुका था कि उसकी गलती कहाँ थी। भाभी माँ के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसने खुद किया। जब बकवास करके गया था कि मेरा इंतज़ार करना, तो करती ना इंतज़ार। मैं चाहे उम्रें गुजार कर वापस आता। अगर उसे मोहब्बत थी तो चाहे सदियां गुजर जाती, वो वहीं रुकती मेरे इंतज़ार में, ना कि मेरे पीछे सबको चकमा देकर भाग जाती। वो थोड़ी ज़िद्दी हैं, आपको पता है ना, मगर ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करती। आप इतनी जल्दी मायूस क्यों हो रहे हैं? जुरेज भरपूर तरीके से जायशा की तरफदारी कर रहा था, मगर इस तरह की ज़िद्दें पूरी करने की पोजीशन में नहीं हूँ मैं। अच्छा होगा वो अपने लिए कोई अपने जैसा सरफिराई तलाश करे, क्योंकि मैं अपने लिए अपने जैसी आम और सादा सी लड़की सिलेक्ट कर चुका हूँ। तुम सब मिलोगे तो तुम लोगों को भी अच्छी लगेगी वो। मैं तो नहीं मिलने वाला उनसे। किसी से मिलना है, किसी और ने मिलना है तो जा सकता है। कुछ दिन पहले तुम ही मेरी मंगनियाँ करवाने के चक्करों में थे ना? ज़ाहिर ने याद दिलाया। वो सब तो मजाक की हद तक था, मगर ये मजाक नहीं है जुरेज, उसने बावर करवाया। भाई ये किसी तौर भी ठीक नहीं। जुरेज का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे, जबकि बाकी सब खामोशी से एक तरफ बैठे थे। जिंदगी है ये, और यहाँ मन चाहा हर किसी को नहीं मिलता। तुम मिनहल से शादी नहीं करना चाहते थे, मगर अब तुम उसके बगैर नहीं रह पाते। मोमिन शाह भी शादी नहीं करना चाहता था, फिर अचानक से उसकी ज़िंदगी में मीराल जुड़ गई, और अब हम सब देख रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने मुतमईन नज़र आते हैं। जबकि औरत शेर और ईशल दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ईशल को औरत शेर का गुस्सा और औरत शेर को ईशल का बचकाना रवैया पसंद ना था, मगर एक मजबूत रिश्ते में बन चुके हैं वो। माना कि अभी उनके दरमियान हालात साजगार नहीं, लेकिन अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने भी यही सोचकर ये कदम उठाया, और तुम सब जानते हो मैं जो फैसला कर लूँ फिर वही अटल होता है। मैं इंतज़ार कर भी लेता कि मुझे शादी वादी की कोई जल्दी नहीं, मगर मोम को तुम सब जानते हो, वो कब से इस बात को लेकर मेरे सर हुई हैं। मैं कब तक अपनी माँ को मायूस करता रहूँ, कब तक उन्हें इनकार करता रहूँ? अरीशा अच्छी है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं, सादा सी लड़की है, और अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे एक सादा और समझदार सी लड़की चाहिए जो मेरे मामलात को समझ सके, मेरे साथ मेरे घर को संभाल सके, और अरीशा में वो क्वालिटीज़ हैं। जायशा रहमान एक छलावा था, इधर से आया उधर को चल दिया। उसने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, जो कि एक लड़की को किसी तरह भी जेब नहीं देती। और तुम लोग खुद सोचो, अगर उसका यही बिहेवियर रहेगा तो हमारे घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? मैं पहले भी इसलिए उसको बढ़ावा नहीं देता था कि उसके कुछ दिन के पागलपन के लिए मैं अपनी साख खराब नहीं कर सकता। मुझे मेरी फैमिली, मेरा नाम और मेरा किरदार, मेरी शख्सियत सबसे अजीज़ है। कोई टीनेजर लड़का नहीं हूँ कि ये सब फजूलियात करता फिरूँ। मेरे और भी बहुत से काम हैं, मैं सब छोड़कर उसकी तलाश में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए ये मेरे लिए और मेरे घर के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। वो सब तो ठीक है भाई, मगर फिर भी आप कुछ टाइम रुक जाएं। दिल शेर ने अपनी सी कोशिश की। जायशा की सब बातें ठीक सही, मगर वो सब जाने क्यों जायशा की ज़िंदगी में जायशा के अलावा किसी और को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तुम सब जानते हो कि मैं किस केस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आजकल में ये मामला निपटा देना चाहता हूँ, ताकि फिर पुरसकून होकर अपने केस पर काम कर सकूँ। क्या एक आखिरी कोशिश भी नहीं कर सकते भाभी को ढूंढने की? अर्श मुरझाया मुरझाया सा बोला। अर्श मेरी जान, मैंने बहुत कोशिशें की हैं। इतने दिन में झक नहीं मार रहा था, ढूंढ ही रहा था, जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। तुम लोग भी इस बात को भूल जाओ, उसके अपने घर वाले लाइल्म हैं तो किसी और को क्या पता होगा। मैं उनके अलावा किसी को अपनी भाभी माँ नहीं मान सकता। जुरेज से जब कुछ ना बन पड़ा तो ज़िद्दी बच्चे की तरह अड़ गया। तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? जब मैं मान गया हूँ तो फिर सबको मानना ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, भाभी माँ मिल जाएंगी। अब तुम दुआ करो कि ना ही मिले तो अच्छा है। अगर कहीं नज़र आ गई तो इन्हीं हाथों से जान ले लूँगा मैं उसकी। आप हमारी भाभी माँ को ज़रा हाथ तो लगाइएगा, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। रियली? जाहिर ने एक आईब्रो उचका कर देखा तो जुरेज की फराटे भरती ज़ुबान को ब्रेक लगी। खुद को अजियत देना बंद करो ईशल, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। मैं हूँ ना, मुझे सताओ, मगर खुद को हर्ट मत करो। मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे होते हुए तुम मैं हूं ना, मुझे सताओ, खुद को हर्ट मत करो। मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे होते हुए एक लड़की खुद को तकलीफ़ दे, जबकि वो मुझे जितनी चाहे तकलीफ़ दे सकती है। मैं मर्द हूँ, मुझ में बर्दाश्त भी ज़्यादा है। तुम्हें आदत नहीं है इस सब की, यूँ मत किया करो यार। वो उसको सूप पिलाते हुए उसके बुखार की हिद्दत से मज़ीद सुर्ख पड़ते चेहरे और नकाहत ज़दा चेहरे को देखते हुए बोला। वो खामोश रही, जैसे अब हिम्मत ना बची हो इसमें। बीमारी ने सारी तवानाई निचोड़ ली थी। ईशल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। चम्मच भरकर उसके मुंह के करीब ले जाते
जाते वो उसको मुतवज्जो करते बोला, ये तो उम्र भर की अजियतें हैं औरत शेर, इनकी बात मत करो, ये दिल के मामले हैं और तुम सिरे से अनाड़ी हो, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम समझा दो, मैं कोरा हूँ तो अपना रंग चढ़ा दो, किसी का नहीं हूँ मैं, तुम अपना बना लो, मैं तो खुद अपनी नहीं हूँ, तुम्हें क्या अपना बनाऊँ। वो तुम्हारा नहीं था ईशल, वो मीराल का मुकद्दर था, वो उसी को मिलना था। ये तो अज़ल से तय होता है ना कौन किसका मुकद्दर बनेगा, ये तो पहले से तय होता है, बाद में तो सिर्फ वसीले बनते हैं, रास्ते निकलते हैं और जो जिसका होता है वो उससे टकरा जाता है। उसने इस पल में खुद पर कितना ज़ब्त किया था ये औरत शेर ही जानता था, या उसका खुदा, और शायद इतना ज़ब्त औरत शेर ही कर सकता था जो अपनी बीवी को ये समझा रहा था कि जो उसी के दोस्त उसी के भाई का जोग लिए बैठी थी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसका था या किसका है, वो मेरा नहीं तो फिर जिसका भी हो, परवाह नहीं। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसे? मुझ पर गुस्सा हो तो गुस्सा करो, मगर यूं तो मत करो। एक नाजुक और कमज़ोर सी लड़की मेरी वजह से तकलीफ़ में हो, मुझे ये किसी तौर गवारा नहीं। तुम जब तक सामने रहोगे तब तक मैं तकलीफ़ में रहूँगी, तुम जब तक साथ रहोगे मैं यूं ही अजियतों में रहूँगी। तो मैं ऐसा क्या करूँ ईशल कि तुम पुरसकून हो जाओ? क्या तुम वाकई चाहते हो मैं सकून में रहूँ? मैं चाहता हूँ तुम नॉर्मल हो जाओ, पहले की तरह खुश रहो। तुमने कहा मैं मोमिन शाह और मीराल के दरमियान से हट जाऊं और मीराल के साथ अच्छे से पेश आऊं, उसके बदले में मैं तुमसे जो कहूँगी मानोगे? तुम्हें याद है ना? मुझे याद है, तुम कहो मैं सुन रहा हूँ। सूप का बॉल साइड पर रखते उसने अपना दिल मजबूत किया और खुद को एक बार फिर बावर कराया कि वो उरद शेर है, बर्दाश्त कर सकता है। तुम यहाँ से चले जाओ उरद शेर। उसका लहजा मुस्तहकम था। कहाँ जाऊँ? उसके अंदर पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी। यकीनन ये सब बहुत कठिन होना था। कहीं भी चले जाओ, मगर यहाँ से चले जाओ। मुझे घुटन होती है तुम्हारे साथ। अगर तुम यहाँ रहे तो किसी दिन दम घुटने से मर जाऊंगी मैं। क्या इसके अलावा और कोई राह नहीं? उसको अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। तुम जिन हवाओं में सांस लेते हो मेरा वहाँ सांस लेने को भी जी नहीं चाहता। हर गुजरते दिन के साथ ये नफरत शिद्दत पसंदी में ढलती जा रही है। इससे पहले कि हम में से कोई जान से जाए तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। मैं इस सब को बुरा ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करूँगी। फैसला सुनाया जा चुका था और अब वहाँ मौत का सा सन्नाटा था। ईशल की नज़रें गोद में रखे अपने हाथों पर थी तो औरत शेर की निगाहें सामने उसके चेहरे पर। वो बज़ाहिर नाजुक सी नज़र आने वाली लड़की कितनी सख्त दिल थी कि उसने आज उरद शेर को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था, उसकी शख्सियत को बखेर कर रख दिया था। वो बज़ाहिर नाजुक सी नज़र आने वाली लड़की कितनी सख्त दिल थी कि उसने आज उरद शेर को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था, उसकी शख्सियत को बखेर कर रख दिया था। उसके लफ्ज़ों ने दिल में कितने छेद किए थे। लहू रिस रहा था मगर वो खामोशी से उसे देख रहा था। वो किसी के लिए इस कदर नापसंदीदा हो सकता है, उसकी ज़ात इतनी तकलीफ़ दे हो सकती है किसी के लिए कि उसकी मौजूदगी में एक लड़की का दम घुटने लगे। तोहफ़ा तुम पर उरद शेर, तोहफ़ा तुम पर। उसने बहुत कुछ सहा था क्योंकि वो उरद शेर था, सह सकता था, मगर आज उसको उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाया गया था। मगर उसे ये भी करना था कि ज़ुबान का पास तो उसको रखना ही था। दिल चाहे कितने टुकड़ों में क्यों ना बढ़ जाए, जान पर चाहे कितनी क़यामतें गुजर जाएं, मगर उसको खड़े रहना था, मजबूती से जमे रहना था। मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि तुम इस कदर अजियत में हो, मेरी मौजूदगी इतनी तकलीफ़ दे है तुम्हारे लिए। मुझे वाकई आज से पहले कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं इस कदर नाकाबिले कबूल हूँ तुम्हें। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, क्योंकि अगर ऐसा कहूँ तो ये सरासर झूठ होगा कि मर्द सही मगर इंसान ही हूँ, और आज मैं वाकई हर्ट हुआ हूँ। इस दिल में मोहब्बत का कोई फूल तो नहीं खिला, मगर आज दर्द के कांटों से भर दिया तुमने उरद शेर का दिल। मैंने तुम्हारा दिल बंजर किया और आज तुमने उरद शेर का दिल वीरान कर दिया। ये सदा से खाली था और रहेगा। जो औरों का दिल उजाड़ते हैं उनके अपने दिल भी कभी नहीं बसते। उरद शेर का दिल भी अब कभी आबाद नहीं होगा। बहुत सा नमकीन पानी अपने अंदर उतारते वो भीगे से लहजे में बोलता। ईशल को नज़रें उठाने पर मजबूर कर गया, मगर ईशल के निगाह करते वो तेज़ी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। क्या था वो खुलता ही ना था, मगर आज वो जिस हालत में उसके पास से उठकर गया था, ईशल ने उसे उतना टूटे बिखरे कभी नहीं देखा था। किस्मत से समझौता भी तो किया जा सकता था, मगर वो नहीं कर पाई थी, या उसको आदत ही नहीं थी अपने आगे देखने की किसी को। जाहिर शाह को आजकल किसी लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में 2-3 बार देखा गया है बॉस। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता कराओ उस लड़की के बारे में, कौन है वो और जाहिर शाह मीर से क्या ताल्लुक है उसका, क्योंकि जाहिर शाह मीर का किसी लड़की से यूं सरेआम मेल मिलाप, यकीनन कुछ तो कहानी होगी इसके पीछे। अब तक का कैरेक्टर तो साफ है उसका, मगर इन हसीनाओं से कब तक कोई पीछा छुड़वाए। ना करते भी बंदा फंस ही जाता है। अगर कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है तो और भी मज़ा आएगा इस खेल में।
बॉस, चूंकि उसको एक ही रेस्टोरेंट में हर बार देखा गया और हर बार सेम टेबल ज़ाहिर शाह मीर के नाम से रिजर्व होती है, तो हम ट्रांसमीटर के ज़रिए उनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं। मंगनी वंगनी का कोई सीन बना रहे हैं वो दोनों, मगर हमारा पत्ता साफ करने के बाद ओ तो एक साथ डबल सेलिब्रेशन करना चाहते हैं शाह साहब। आज शाम में किसी पार्क में मिलने वाले हैं, क्या कहते हैं उड़ा दूं दोनों को? फिर तो और भी मज़ा आएगा, हम भी डबल मज़ा उठाएंगे शाह साहब की हार का। और दूसरा मैं शाम में ही बताऊंगा, मेरी कॉल का इंतज़ार करना। ओके बॉस, जैसे आप कहें।